Hello everyone, once again welcome to my channel. Today we are going to learn about the types of the sentences. We already studied about the assertive, interrogative and exclamatory. In the previous lecture already we talking about the exclamatory sentences which have the different kinds of the expressions. We already studied it, how they just start with which words and what kinds of the expressions are there. इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. Today we are going to learn about the next type of the sentence, and that is the imperative sentence. Today we are going to learn about the imperative sentence. See that imperative sentence. What is the importance of the imperative sentence in communication skill? बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इंग्लिश तो बोलना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सेंटेंस बोल पाते हैं, मतलब एसरेटिव सेंटेंस जो है उनको बोल पाते हैं, लेकिन क्वेश्चन की बात आती है तो उस टाइम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बोलना है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा. लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी के बारे में भी पढ़ा. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इनको कैसे बनाया जाता है. फर्स्ट दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू आइडेंटिफाई द सच काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस. क्यों ऐसे सेंटेंस को कैसे पहचाने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी का इंटरव्यू सुनते हैं या किसी सेलिब्रिटी का कुछ अच्छा सा स्पीच सुनते हैं तो उस टाइम मतलब कुछ सेंटेंस वो बोलते हैं तो द कम्युनिकेशन इज द मिक्सअप विद ऑल टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस. हर कोई बोलते समय हर एक प्रकार के सेंटेंस बोलते रहता है, लेकिन हम लोग वो समझ नहीं पाते कि ये इंट्रोगेटिव है, एसरेटिव है या interrogative sentences है, exclamatory है. Okay, so today we have to learn about that. What is the format of imperative sentence and how to we just identify them and how we are just going to use in our communication skill. यही बात होती है जो हमें आज सीखनी है. Imperative sentence किसे कहा जाता है? So please pay attention here. You can see there subject plus verb plus object. That is the basic format of the every sentence. Okay, you can see there the sentence is started with a subject, that's why they are called as a assertive or simple sentence. But you will find in the imperative sentence the sentence is started with main verb. I am talking about the sentence is started with verb, and that's why they are called as a imperative sentence. There is the absence of subject. You will find there कि आपको इस सेंटेंस में एक बात ध्यान में आएगी कि ये सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है, मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है. यू आर नॉट गोइंग टू पॉइंट आउट एनीबडी, नोबडी जस्ट प्लेइंग द रोल, डायरेक्टली यू आर गोइंग टू स्पीक एंड विद द हेल्प ऑफ द मेन वर्ब, एंड दैट इज कॉल्ड द इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंस का यही इंपॉर्टेंस होता है. फिर से मैं एक बार बता दूं, हर एक सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है. फॉर एग्जाम्पल द चीफ मिनिस्टर जस्ट विजिटेड दैट लोकेशन, कि चीफ मिनिस्टर ने उस जगह पे तुरंत ही यहाँ पे जाके आए. ओके, उन्होंने विजिट किया. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द चीफ मिनिस्टर. ओके, द बॉय इज प्लेइंग वेरी नाइस गेम. ओ बॉय, वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉय. मीन्स सो मेनी टाइम्स व्हाट हैपन, many sentences started with subject. Somebody just playing role, but in this kinds of the sentence you will find there is the absence of subject. कौन कर रहा है पता नहीं, किसके साथ हो रहा है पता नहीं, फिर जो हो रहा है that is the main verb which is showing the activity directly. So you will find the imperative sentence which always started with verb, and they have the different two forms of these verb, these sentences. For example, the first one is called as a affirmative. Second is negative. Now what is the differentiate actually, how we can just differentiate these imperative sentence? You will find it sometimes in affirmative form and sometimes in negative form. फिर क्या होता है affirmative मतलब क्या होता है? जो सेंटेंस में नॉट नहीं है. बहुत सिंपल है. जिस सेंटेंस में नॉट नहीं है डायरेक्टली आप जिस सेंटेंस को बोल पाते हो मेन वर्ब के साथ में, उनको एफर्मेटिव कहा जाता है. और जिन सेंटेंस में नेगेटिव मतलब नॉट रहता है, जिनकी शुरुआत नॉट से होती है, वो नेगेटिव फॉर्मेट में आते हैं. फिर दोनों में फर्क क्या है? तो यू कैन फाइंड देयर कि यहाँ पे होता है मेन वर्ब से स्टार्ट और यहाँ पे ये सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होते हैं डोंट से. Now you will also realize one thing. सर, हम लोगों ने बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस सुने हैं
कि जिनकी शुरुआत ही डोंट से होती है. ओके, डोंट से होती है. डोंट डू दैट, डोंट रेज योर वॉइस, डोंट जस्ट raise your voice, don't take any objection. Okay, don't just mingle the all subjects together. So such kinds of the sentences, those are started with don't. Okay, that's why they are called as a negative sentences. Now we are talking about the affirmative, and affirmative में क्या होता है, directly हम लोग verb से start करते हैं. For example, I would like to take one example. Open the door. Very simple sentence I have taken already here. Open the door, and you will find here don't open the door. Don't open the door. See that. अभी दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, इधर भी नहीं है, बराबर है, लेकिन इस सेंटेंस की शुरुआत हो चुकी है ओपन से, मतलब डायरेक्टली स्टार्ट विथ मेन वर्ब. ओके, मेन वर्ब को कैसे पहचाने तो आपको पता है, बिकॉज इट इज शोइंग द एक्टिविटी. What is the activity? Opening the door, that is the activity. Okay, तो open से start हुआ, यहाँ पे देखा आपने तो don't से start हुआ, मतलब दोनों में क्या फर्क है, तो मैंने बताया यहाँ पे इधर main verb से start, यहाँ पे don't से start होती है. So this is the difference actually. Many sentences we like to speak in English, और communication में होता है बहुत बार ऐसा कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इंग्लिश सीखना है तो आपको शॉर्ट सेंटेंस बोलने की कोशिश करनी चाहिए. अगर आप शॉर्ट सेंटेंसेस बोलते हो तो बहुत अच्छी तरह से आपका कम्युनिकेशन बढ़ता जाएगा, बहुत अच्छी तरह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा. लेकिन यू विल फाइंड द सम सेंटेंसेस इन अफर्मेटिव फॉर्मेट एंड सम विल इन नेगेटिव फॉर्मेट. फिर बात आती है इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, किस लिए हम लोग यूज करते हैं. सो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन. द फर्स्ट वन इज दैट इज रिक्वेस्ट. हाँ, आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आप इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हो. या इफ यू वांट टू शो द रिक्वेस्ट इन द सेंटेंसेस देन यू कैन आल्सो शो यू विद द हैविंग द रिक्वेस्ट. तो आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो. ठीक है, रिक्वेस्ट के बाद में कौन सा आता है फिर, तो इसमें आता है कमांड, देन सजेशन. ओके, सजेशन, फिर उसके बाद में आता है एडवाइस. एडवाइस भी आता है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, सजेशन है, ऑर्डर है. तो इस तरह से ये जो कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं दे हैव द डिफरेंट एक्सप्रेशंस. हाँ, आपको इनको शो करना है तो इस तरह से आप लोग शो कर सकते हो. हाँ, अभी कभी कभी ऐसा भी होता है, some may have the actually that doubt. सर कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में भी इंपेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट बनता है क्या? हाँ, तो बनता है. फॉर एग्जाम्पल, विल यू हेल्प मी? सी दैट दिस इज द एग्जाम्पल. विल यू हेल्प मी? there is actually question mark and that is started with the verb will. It shows verbal question, but we are talking about imperative sentence. हाँ, तो ऐसे सेंटेंस में अगर आप शुरू में प्लीज ऐसा लिखते हो, प्लीज, प्लीज, विल यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, in this way you can put the many polite request in the sentences. किसी भी भाषा में किसी को क्वेश्चन पूछने का एक स्किल होता है. कम्युनिकेशन स्किल में आपने बहुत सारी सेंटेंस बोल लिए, मतलब बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, ऐसा नहीं होता है. सो यू कैन शो द वन एक्सप्रेशन इन द वेरियस वेज, दैट इज द स्किल. मतलब एक ही मीनिंग को प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक तरीके से ही नहीं बोला जाता है, तो आप 4-5 तरीके से भी बोल सकते हो. मतलब किसी की मदद मांगनी है तो आप किस तरह से पूछ सकते हो. फर्स्ट वन इज प्लीज हेल्प मी, दैट इज द फर्स्ट वन. सेकेंड, कैन यू हेल्प मी. ओके, थर्ड वन इज प्लीज विल यू हेल्प मी, देन वुड यू लाइक टू हेल्प मी. ओके, सो यू कैन से दैट these are the various ways to make the polite request. अभी आप बोलोगे सर ये तो पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई, फिर पोलाइट रिक्वेस्ट को कौन से सेंटेंस में कन्वर्ट करें? अरे ये तो ऑलरेडी इंपेरेटिव सेंटेंस में है, बिकॉज दे आर शोइंग द रिक्वेस्ट. ओके, नाउ देयर इज द कमांड एंड ऑर्डर. यू कैन से दैट दिस सेंटेंस स्टार्टेड विद डोंट. हे, डोंट रेज योर वॉइस, दैट इज माय ऑर्डर. सी दैट
For example, you are just doing something naughtiness and just showing your naughtiness at home, and your father is scolding you. At that time, he will start his sentence, "Hey, don't do that. Just keep quiet." तो ये हो गया ऑर्डर, मतलब पिताजी बच्चों को ऑर्डर देते हैं, ठीक है, टीचर स्टूडेंट को सजेशंस देते हैं, डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस देता है। इस बात को समझ लो। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। आई थिंक सो कुछ पहले कुछ वीडियो में मैंने बताया था कि देयर इज अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप। ऐसा होता है कि स्टूडेंट टीचर को ऑर्डर नहीं करेगा, टीचर स्टूडेंट के लिए ऑर्डर कर सकता है, सजेशन कर सकता है। अभी रिक्वेस्ट कौन किसे करता है? छोटा रिक्वेस्ट बड़े से करता है, अंडरस्टैंड? बड़े कभी छोटों को रिक्वेस्ट नहीं करते। सो there are some particular relationships, they are also showing the different expressions. Okay, we are talking about such kinds of the sentences. कभी कभी ऐसा होता है कि कमांड है, सजेशन है, एडवाइस है। अभी डॉक्टर एडवाइस देता है पेशेंट को, तो बोलता है कि तुम ज़्यादा खाना मत खाते जाओ, ओके, या तो फिर आपका सेंटेंस का स्टार्ट डोंट से होती है, मतलब ओ मत करो, हाँ ये करो इन अफर्मेटिव फॉर्मेट, ये मत करो दैट इज इन नेगेटिव फॉर्मेट। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ये करो मतलब डायरेक्टली स्टार्ट विथ वर्ब से स्टार्ट करो, और ये मत करो ऐसा बोलना है तो आप डोंट से करो। फॉर एग्जाम्पल, मे बी यू हैव दैट काइंड्स ऑफ द एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जाम्पल, यू जस्ट रिसेंटली विजिट एनी गार्डन at the entrance you can find there is the board डूज और डोंट ऐसा लिखा हुआ होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि गार्डन में जाने से पहले कुछ ऐसे रूल्स वहाँ पे लिखे होते हैं जहाँ में डूज रहता है और डोंट भी रहता है, बराबर है। डूज मतलब ये सारी चीज़ें करो, लेकिन डोंट ये चीज़ें मत करो, ओके, मतलब ये करना है ये नहीं करना है। हाँ, ये करना है दैट इज ऑल्सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, अंडरस्टैंड, और ये मत करो इट इज ऑल्सो शोइंग द इम्पेरेटिव सेंटेंस। दोनों में भी एक फर्क होता है, मतलब वो एक तो पॉजिटिव है या निगेटिव है, लेकिन दोनों भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। बहुत सिंपल होता है। सो इन दिस वे आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचाने, जिनकी शुरुआत वर्ब से होती है वो इम्पेरेटिव होते हैं। मे बी वो डोंट से भी स्टार्ट हो सकते हैं, अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल। और इनमें कौन सा एक्सप्रेशंस होता है? तो रिक्वेस्ट होती है, कमांड होती है, सजेशंस होता है, ऑर्डर होती है, और इस तरह से एडवाइस भी हो सकता है। तो इन दिस वे वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इम्पेरेटिव सेंटेंस। मुझे लगता है मैंने आप आज तक जो सबसे पहले पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, एसेरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाए, कैसे पहचाने, कैसे बोले। नेक्स्ट देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन को कैसे बनाए, इंट्रोगेटिव में कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, WH वर्बल, इनको भी कैसे पूछे या कैसे बनाए वो भी हमने देखा। उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी, और आज के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ाया इम्पेरेटिव सेंटेंस। अभी बात आती है कम्युनिकेशन स्किल की, या दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने तो बहुत सारे एग्जाम्पल को बुक से ढूंढना है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे सेंटेंस को समझ लेना है, लेकिन दोज वांट टू स्पीक इन इंग्लिश दे हैव टू ट्राई विद द सच काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस, ओके। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छा करना है, आपको बोलना है, तो टुडे फ्रॉम टुडे यू हैव टू स्टार्ट द सेंटेंसेस विद द वेरी सिंपल फॉर्मेट। Directly you can start with the verb, ends with the object, you can extend the object, that is your skill. Sometimes start with the don't, just find out if you want to make the practice, you can do one thing. आप एक अच्छी बात कर सकते हो, आज से ही करो। 10 सेंटेंस डायरेक्टली अफर्मेटिव फॉर्मेट में बोलने की कोशिश करो और 10 सेंटेंस नेगेटिव में बोलने की करो। जो शब्दों की शुरुआत या जस्ट सेंटेंस की शुरुआत डोंट से होती है, ट्राई टू रिकॉल देम। If you have the good vocabulary, with the help of the vocabulary, just make the 10 sentences. Don't write on the piece of the paper. That is not necessary. If you want to just improve your communication skill, then you have to directly speak in English. That is all. ये बहुत important है। आपको कुछ आता है वो पेपर पे लिखने के बजाय मैं बोलता हूँ आप डायरेक्टली स्पीक विथ योर फ्रेंड, ठीक है। अगर देर इज नो बडी हियर मीन्स यू डोंट हैव एनी कंपेनियन, सो यू कैन टॉक विथ योर सेल्फ, that will be also okay because it is part of practice.
ट्राई टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टॉक विथ योर सेल्फ। ओके, टुडे आप ऐसा कर सकते हैं कि आईने के सामने खड़े हो जाओ और 10 सेंटेंस डोंट से शुरू होते हैं ऐसे सेंटेंस के बोलने की कोशिश करो। ट्राई टू रिकॉल देम। होता ये है कि मन में बहुत अच्छी तरह से हम लोग सेंटेंस को बना पाते हैं, लेकिन बात तब आती है व्हेन योर टंग इज गोइंग टू सपोर्ट यू। आपका टंग आपको अगर सपोर्ट करता है तो अच्छी तरह से सेंटेंस आप बोल पाते हैं, फिर फंबलिंग नहीं होगा, हेजिटेट नहीं करोगे, अच्छी तरह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि यू विल हैव दैट अपॉर्चुनिटी, समबडी जस्ट टॉकिंग टू यू एंड एट दैट राइट मोमेंट यू आर गोइंग टू डायरेक्टली स्पीक इन इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन। फिर कैसे बोलोगे? तो इफ यू हैव द प्रैक्टिस देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो इस तरह से होता है, मतलब सेंटेंस बोलना है तो थोड़ी सी ट्राई करो, बोलने की कोशिश करो। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है, फाइंड आउट देम विद द हेल्प ऑफ द वोकैबुलरी यू कैन मेक द लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी। सी दैट अभी मैंने एक सेंटेंस बना दिया, डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी। ये होता है, ये डायरेक्टली आएगा, इसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपको इस पे काम करना है। इसीलिए मैंने हर एक वीडियो एक पॉइंट पे बनाए, ताकि आप सब वीडियो अगर देखोगे तो बहुत सारे एक वर्ड का इंपॉर्टेंस बताए, तो उनको डेली कम्युनिकेशन में यूज़ करने की कोशिश अगर आपने की तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।